नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। थर्ड डे एट होम। आई एम हैविंग ए ग्रैंड हॉलीडे, स्टेइंग एट होम, नॉट गोइंग एनीवेयर, नो मेडिटेशन सेशंस, नो ट्रैवलिंग, ए रियल हॉलीडे। व्हाट एम आई डूइंग? लेजिंग आउट, प्लेइंग विद निर्वाण, watching movies. I watched two movies, Martian and Jurassic World. I watched cricket after a long time. India versus West Indies Test match second. I am watching lot of CNN TV news, watching with great interest Trump, Hillary Clinton. Yesterday I studied Nirvan a little more. A crystal child. PSSM is now full of crystal children, perfectly enlightened masters becoming born again to work again to enlighten the world again. And I read yesterday another book on a prayer by Yash Birla. Yash Birla from the Birla Group, born in 1967. He grew up with a silver spoon and extremely sheltered child. His father Ashok Birla, mother Sunanda. His upbringing included grandmother and great grandmother. His sister Sunanda in 1990, when Yash was in USA studying MBA, he got news his parents' sister were in a plane accident, crash and died. Yash returns to Bombay to an empty house. He contacts his mother through Auja board through a 95-year-old medium in Goregaon. When asked, "Are you okay?" he got the reply from the board, "Don't ask, we are fine. Your sister is not okay. We were with you this morning. Thank you for the flowers and the mantras." Some aside from the book on a prayer. Meditation, pranayama, eating well, all these are parts of a lifestyle that eventually makes you feel better, more whole. I have always been a vegetarian. Your thoughts get affected by what you eat and drink. Eat the right food. Through many years, I have also kept away from any form of intoxication. Nothing is permanent. You have to value the relationships you have the while you have them. Every moment must be cherished with your loved ones. I have heard Krishna's flute playing in Bansi Narayan, and I have seen three black robed rishis disappear into the night at Mount Kailash. These experiences cannot be logically explained. They just happen. We are not what we are. Reality is beyond the mind. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं. Third day at home. I am having a grand holiday, studying at home, not going anywhere, no meditation session, no traveling, a real holiday. What am I doing? Lazing out, playing with Nirman, watching movies. I have watched two movies, Martian and Jurassic World. I watched cricket after a long time, India versus West Indies, Test match second. I am watching lot of CNN TV news, watching with great interest Trump, Hillary Clinton. Yesterday, I studied Nirvan a little more. A crystal child. PSM is now full of crystal children, perfectly enlightened master becoming born again to work again, to enlighten the world again. And I read yesterday another book on a prayer by Yash Birla. Yash Birla from the Birla Group, born in 1967. He grew up with a silver spoon, an extremely sheltered child. His father, Ashok Birla, mother Sunanda, his upbringing included grandmother and great grandmother, his sister Sujata. In the year 1990, when Yash was in USA studying MBA, he got news his parents' sister were in a plane accident, crashed and died. Yash returns to Bombay to an empty house. He contacts his mother through Auja board through a 95-year-old medium in Goregaon. When asked, "Are you okay?" he got the reply from the board, "Don't ask, we are fine. Your sister is still not okay. We were with you this morning. Thank you for the flowers and mantras." Some aside from the book on a prayer, meditation, pranayama, eating well, all these parts of a lifestyle that eventually makes you feel better, more whole. I have always been a vegetarian. Your thoughts get affected by what you eat and drink.
eat the right food. Through many years, I have also kept away from any form of intoxication. Nothing is permanent. You have to value the relationships you have while you have them. Every moment must be cherished with your loved ones. I have heard Krishna's flute playing in Bansi Narayan, and I have seen three black robed rishis disappear into the night at Mount Kailash. These experiences cannot be logically explained. They just happen. We are not what we are. Reality is beyond द माइंड। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। घर पर तीसरा दिन, मैं एक शानदार छुट्टियां मना रहा हूँ। घर पर रहना, कहीं नहीं जाना, कोई यात्रा नहीं, एक वास्तविक छुट्टी। मैं क्या कर रहा हूँ? आलस कर रहे हैं, निर्वाण के साथ खेलना, फिल्में देखना। मैंने 2 फिल्में देखी, मार्टिन और जुरासिक वर्ल्ड। मैंने बहुत समय के बाद क्रिकेट देखा। भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच द्वितीय। मैं बहुत सी CNN टीवी समाचार देख रहा हूँ। ट्रंप, हिलेरी क्लिंटन। कल मैंने निर्माण का थोड़ा और अध्ययन किया। एक क्रिस्टल बच्चा PSSM अब क्रिस्टल बच्चों से भरा है। पूरी तरह से प्रबुद्ध स्वामी फिर से जन्म ले रहे हैं। फिर वे काम करने के लिए, दुनिया को फिर से प्रबुद्ध करने के लिए। और मैंने कल एक किताब पढ़ी, ऑन ऑफ पेयर, लेखक यश बिरला, बिरला समूह से यश बिरला। 1967 में जन्म, उनके साथ बड़े हुए एक चांदी के चम्मच के परिवार में एक बेहद सुरक्षित बच्चा। उनके पिता अशोक बिरला, मां सुनंदा। उनके पालन पोषण में दादी, परदादी शामिल थी। उनकी बहन सुजाता। साल 1990 में जब यश अमेरिका में थे, MBA की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें खबर मिली कि उनके माता पिता, बहन एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यश एक खाली घर में बम्बई लौट आया। वह औजा बोर्ड के माध्यम से अपने माँ से बात करता है। गोरेगांव में 95 साल पुराने मीडियम के माध्यम से जब पूछा गया, क्या आप ठीक हैं, उन्होंने बोर्ड से उत्तर मिला, मत पूछो, हम ठीक है, तुम्हारी बहन अभी ठीक नहीं है। आज सुबह हम आपके साथ हैं। फूलों और मंत्रों के लिए धन्यवाद। ऑन ऑफ प्रेयर पुस्तक से कुछ अंश। ध्यान, प्राणायाम, अच्छा भोजन, ये सभी जीवन शैली के हिस्से हैं जो अंततः आपको बेहतर और अधिक संपूर्ण महसूस करते हैं। मैं हमेशा से शाकाहारी रहा हूँ। आप जो भी खाते पीते हैं उससे आपके विचार प्रभावित होते हैं। सही खाना खाएं। कई वर्षों से मैं किसी प्रकार के नशे से दूर रहा हूँ। कुछ भी स्थायी नहीं है। आपको रिश्तों की कदर करनी होगी। आपके पास है जबकि वे आपके पास हैं। अपने परिजनों के साथ हर पल को संजो कर रखना चाहिए। मैंने बंसी नारायण में कृष्ण की बांसुरी बजते हुए सुना और मैंने कैलाश पर्वत पर 3 काले वस्त्रधारी ऋषियों को रात में गायब होते देखा। इन अनुभवों को तार्किक रूप से समझाया नहीं जा सकता, वह बस घटित हुए हैं। हम वो नहीं है जो हम हैं, वास्तविक मन से परे हैं। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। घर पर तीसरा दिन, पत्री सर बता रहे हैं जब अपने पहले पोते निर्वाण के साथ जो समय बिता रहे हैं, आज उसका तीसरा दिन है। तो घर पर पति सर बता रहे हैं कि किस तरह उन्हें व्यतीत कर रहे हैं। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पति सर कह रहे हैं कि मैं शानदार छुट्टियां मना रहा हूँ। घर पर रहना और कहीं नहीं जाना, कोई यात्रा नहीं, एक वास्तविक छुट्टी के रूप में आनंद ले रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पति सर कह के आलस कर रहे हैं, निर्वाण के साथ खेलना और फिल्में देखना। उन्होंने 2 फिल्में देखी, मार्टिन और जुरासिक वर्ल्ड। बहुत समय के बाद उन्होंने क्रिकेट मैच देखा, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच द्वितीय। और बहुत सी CNN टीवी समाचार को देखा। ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के उस समय जो समाचार चल रहा था। कल मैंने निर्माण को थोड़ा और अध्ययन किया, उन्होंने बता रहे हैं। एक क्रिस्टल बच्चे के रूप में उन्होंने देखा। PSSM अब बहुत से क्रिस्टल बच्चों से भरा है, उसके बारे में बता रहे हैं। पूरी तरह से
प्रबुद्ध बच्चे उन्हें प्रभु ज्ञानोदय इलाइटन बच्चे के रूप में बता रहे हैं कि जन्म ले रहे हैं फिर काम करने के लिए, दुनिया को फिर से प्रबुद्ध करने के लिए। और मैंने कल एक और किताब उन्होंने पढ़ी, उसके बारे बता रहे हैं। ऑन ऑफ प्रेयर लेखक यश बिरला जी हैं, उनके बारे बता रहे हैं। बिरला समूह से यश बिरला 1967 में उनका जन्म, और एक अच्छे धनी परिवार में उनका जन्म हुआ, और एक बेहद सुरक्षित बच्चा। उनके पिता अशोक बिरला, माँ सुनंदा, और उनके पालन पोषण में दादी परदादी शामिल थी, और उनकी बहन सुजाता। साल 1990 में जब यश बिरला जी अमेरिका में थे, एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्हें खबर मिली कि उनके माता पिता बहन एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, और वापस वह बंबई में अपने खाली घर में वापस लौट आए। गोरेगांव में 95 साल पुराने मीडियम के माध्यम से जब उन्हें पूछा गया अपने माताजी के बारे, आप ठीक हैं, तो उन्होंने बोर्ड से उत्तर मिला, मत पूछो, हम ठीक हैं, तुम्हारी बहन अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। उन्हें औजा बोर्ड के माध्यम से यह संदेश मिला। आज सुबह हम आपके साथ थे, सुबह से आपके साथ थे, और फूलों और मंत्रों के लिए आपका धन्यवाद। ये ऑन ऑफ प्रेयर द पुस्तक से कुछ अंश लेकर बता रहे हैं। ध्यान, प्राणायाम और अच्छा खाना, ये सभी जीवन शैली के एक हिस्से हैं, बता रहे हैं। ध्यान, प्राणायाम और अच्छा खाना, जो ये सभी हमारे जो जीवन की शैली के हिस्से हैं दोस्तों। ध्यान हमें, जो पत्री सर ने बताया, नियमित रूप से करना चाहिए। श्वासों के साथ जो पत्री सर ने हमें बताया, नियमित रूप से हमें प्रतिदिन करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए, संजय संगति करना चाहिए दोस्तों। इन चीजों के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, जो अंततः आपको बेहतर और अधिक संपूर्ण, महसूस करते हैं, जो वो बता रहे हैं। और जो लेखक है इस पुस्तक के, वो बता रहे हैं कि हमेशा से मैं शाकाहारी रहा हूँ। आप जो भी खाते हैं, इससे आपके विचार प्रभावित होते हैं। सही खाना खाएं, जैसे हम अक्सर सुनते हैं और सभी हम जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। उस चीज को बता रहे हैं कि हम जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर असर करेगा। कई वर्षों से मैं सभी प्रकार के नशे से दूर रहा हूँ, कुछ भी स्थायी नहीं है, वो बता रहे हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि आपको रिश्तों की कदर करनी होगी। आपके पास जब भी आपके पास है, अपने प्रिजनर के साथ हर पल को संजो कर रखना चाहिए। उन चीजों को बता रहे हैं कि हम अपने रिश्तों की कदर करें, और प्रिजनों के साथ रहकर और उस पल को हम संजो कर रखें। यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने बंसी नारायण में कृष्ण की बांसुरी बजते हुए सुना, और मैंने कैलाश पर्वत पर 3 काले वस्त्रधारियों को, ऋषियों को रात को गायब होते देखा। इन अनुभवों को हम तार्किक रूप से समझा नहीं सकते, बस ये घटित हुए हैं। इन चीजों को हम कभी भी बता नहीं सकते जो घटित होती है। हम जो नहीं है, जो हम हैं, वास्तविक मन से परे हैं दोस्तों। ये अध्याय बहुत ही दिलचस्प रहा। मुझे भी इस अध्याय के माध्यम से मुझे कुछ अनुभव हुए कि पति सर बता रहे हैं कि हमें बच्चे जो क्रिश्चियन बच्चे की तरह है, और रिश्तों की कदर होनी चाहिए, और उन पलों को संजो कर रखना चाहिए। उन चीजों को हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन के अंदर इस चीज को अमल करना चाहिए दोस्तों। तो इस अध्याय के माध्यम से आपको भी जो अनुभव हुआ, तो उस चीज को आप अच्छी तरह जीवन में इसको अमल करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।